Assalamu alaikum students. Welcome to your ninth class mathematics lecture. In this lecture we are going to cover exercise 5.3 and we will solve question 2 and question 6. Our question number 2 is if x plus 2 is a factor of 3x square minus 4kx minus 4k square, then find the value of k. As you can see in the given polynomial we are having k, so we can find the value of it. Now what does factor mean? If one thing is a factor of the polynomial, what does that indicate? In the previous lecture, we have learned that factor means if something is a factor of the polynomial, it means there should be no remainder. We are having the answer 0. In question number 3, we have done that the equation must be equal to, or the polynomial's answer must be equals to 0. What is the step of doing this question? First of all, we have to suppose x plus 2 equals to 0, and we will take the value of x from here, that would be minus 2. Now we will take our polynomial p of x equals to 3x square minus 4kx minus 4k square, that is the given polynomial. Now we will replace x with its value, which is minus 2. So we have placed minus 2 instead of x in the whole equation. Taking the square, we will get 3 into 4. We will multiply these two. Minus into minus will become plus. 4 into 2 is 8 and k will remain the same, minus 4k square. Now multiplying 3 with 4 we will get 12. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फैक्टर का मतलब था कि इक्वेशन 0 के इक्वल हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारी इक्वेशन 0 के इक्वल नहीं हुई. हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम इस इक्वेशन को खुद से 0 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास k की कोई वैल्यू होती तो ये सारी चीज़ें आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 0 आंसर देती. ये चीज़ हमें कैसे पता चली? ये चीज़ हमें सवाल में गिवन है कि x plus 2 is a factor of this polynomial, which means it should be or the answer should be 0. तो हमने गिवन कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए अपने इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर लिया. नेक्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशन को अरेंज करते हुए माइनस 4 कॉमन ले लिया. माइनस के स्क्वायर हमारा प्लस के स्क्वायर में चेंज हो गया, प्लस 8k माइनस 2k में, और प्लस 12 माइनस 3 में. बिकॉज हमने माइनस कॉमन लिया है इसलिए हमारे अंदर के तमाम डिजिट्स के साइन चेंज हो गए और हमने वो चीज़ें लिखी जो कि 4 पे डिवाइड करने के बाद आ रही थी. 4 3 times 12, 4 1 times 4 and 4 2 times 8. Now we will divide minus 4 to the other side of the equation. तो हमारी इक्वेशन रह जाएगी k square minus 2k minus 3 equals to 0. अब हमारा सवाल ये है कि we have to find the value of k. तो according to the given condition हमें पता लग रहा है कि now we are going to break the midterm. After breaking the midterm we will be having two values of k. This is the last step from the previous slide. अब मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आप सबको पता है कि वी मस्ट बी लुकिंग एट द सेंट्रल कोफिशिएंट. हमारा सेंट्रल कोफिशिएंट 2 है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट्स. सो कमिंग टू द वर्किंग, और सेंट्रल कोफिशिएंट इज 2, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट 1 into 3 is 3. उसके बाद हम उसके फैक्टर्स बना लेते हैं इस तरह कि दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके हमारा 3 आए और प्लस या माइनस करके हमारा 2 आए. तो बिकॉज ये प्राइम नंबर्स थे इसलिए इनका एक ही फैक्टर्स था 1 into 3. 1 और 3 वो अपने अपने ही फैक्टर्स हैं और 3 minus 1 हमारा 2 भी हो जाता है और 3 into 1 3 ही आंसर देता है. सो 1 and 3 आर द फैक्टर्स. So now we have replaced 2 with 3 minus 1. 3 minus 1 is also 2. Now opening the brackets, minus sign will change the sign of 1, तो वो plus 1k में change हो गया. अब हमने 2 में से कॉमन ले लेना है, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर हमारी कॉमन ब्रैकेट सेम आ जाए तो इसका मतलब हमारी मिड टर्म करेक्टली ब्रेक हुई है. हम कॉमन ब्रैकेट्स को एक दफ़ा लिख देते हैं, k माइनस 3 और k और प्लस 1 विच आर आउटसाइड द ब्रैकेट, उन्हें हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं. उसके बाद वी हैव स्प्लिट दीज टू ब्रैकेट्स, k माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड k प्लस 1 इक्वल्स टू 0. Taking the constant terms to the other side of the equation, we get two values of k.
विच इज़ 3 एंड -1। हमारे सवाल में हमें k की वैल्यू फाइंड करने का कहा गया था, जो कि हमारे पास आई है 3 और -1। Now coming to question number 6. Question number 6 is remainder after dividing the polynomial p of x this by x plus 1 is 2b। अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो हमारा x प्लस 1 को इस पॉलिनॉमियल पर डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 2b। यानी हमारा आंसर जब हम x की वैल्यू इस रिमाइंडर में इस पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे तो आंसर 2b होना चाहिए। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि वो फैक्टर था तो हमने कहा हमारा आंसर 0 होना चाहिए, तो हमने उसे 0 के इक्वल पुट कर दिया। इसी तरह यहाँ उन्होंने कह दिया है कि आंसर 2b के इक्वल होना चाहिए, तो हम इस आंसर को 2b के इक्वल पुट कर लेंगे। उसके बाद दे आर आस्किंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b दोनों वेरिएबल्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है इफ दिस एक्सप्रेशन मींस दिस एक्सप्रेशन p ऑफ x का एक्सप्रेशन लीव्स द रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5। b प्लस 5 रिमाइंडर देगा व्हेन ऑन डिवाइडिंग बाय x माइनस 2, जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। सिंपल वर्ड्स में हमने इस पॉलिनॉमियल को एक दफ़ा ये वैल्यू को पुट करना है और इस पॉलिनॉमियल में एक दफ़ा ये वैल्यू पुट करनी है। जब हम x की वैल्यू 1 यानी -1 इसमें पुट करेंगे तो जो भी हमारा आंसर बचेगा हम उसको इक्वल टू 2b रखेंगे। जब हम x की वैल्यू यहाँ से लेंगे जो कि 2 होगी और इस पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम इक्वल टू b प्लस 5 रखेंगे। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम लेते हैं x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। इसे अपने गिवन पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे। कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा a प्लस 6। अब हमने इसको x प्लस 1 को पुट किया था, तो x प्लस 1 को पुट करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए था 2b, लेकिन हमारा रिमाइंडर आया a प्लस 6। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम a प्लस 6 को इक्वल रख लेंगे 2b के और इस कंडीशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। पहला पार्ट हमने इस क्वेश्चन का सॉल्व कर। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट कैलकुलेट से आगे से स्टार्ट हो रहा है कि कैलकुलेट a और b। अब उन्होंने कह दिया कि सेम इसी पॉलिनॉमियल के एक्सप्रेशन को डिवाइड करें x माइनस 2 से और आंसर इक्वल आना चाहिए b प्लस 5 के। तो पहले तो वी विल टेक x माइनस 2 एंड द आंसर ऑफ x विल बी 2। इसको हम अपने पॉलिनॉमियल में पुट करते हैं। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 2 लगा दिया, 2 का क्यूब लिया और 2 का स्क्वायर लिया। हमारे पास वैल्यूज़ ये आ गई। 8 और 7 को हमने ऐड कर दिया तो 4a प्लस 15 हमारे पास आंसर आ गया आफ्टर पुटिंग द वैल्यू 2। यानी इस वाले को यूज़ करते हुए इस एक्सप्रेशन में हमारे पास आंसर आया 4a प्लस 15, जबकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि आंसर आना चाहिए b प्लस 5। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन उसको यूज़ करते हुए हम कहेंगे कि 4a प्लस 15 जो है वो b प्लस 5 के इक्वल होना चाहिए। यानी इन दोनों में अगर a और b नोन हो जाएं, उनकी वैल्यूज़ पता चल जाएं, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। हमारी पहली इक्वेशन थी a प्लस 6 इक्वल्स टू 2b और हमारी दूसरी इक्वेशन है 4a प्लस 15 इक्वल्स टू b प्लस 5। हम अपनी पहली इक्वेशन से अब हमें b और a दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हम इन्हें दो तरीके से कर सकते हैं। एक, हम इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज़ कंपैरेटिवली इजी, तो मैं यहाँ पे वो अप्लाई करूँगी। इक्वेशन 1 को लेंगे, टेकिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम a की वैल्यू लेते हैं। a की वैल्यू का मतलब है कि हम a को अकेला कर देते हैं और इक्वेशन को इक्वल्स टू 6 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इट वुड बिकम a इज इक्वल्स टू 2b माइनस 6। अब इस a की वैल्यू को जो कि है 2b माइनस 6 हम अपनी सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी 4a प्लस 15 इक्वल्स टू b प्लस 5।
a को हमने रिप्लेस कर दिया 2b माइनस 6 से। अब ये 4 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था a से, इसलिए हम इसको a की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 8b माइनस 24 प्लस 15 इक्वल्स टू b प्लस 5। अब हम इक्वेशन के एक तरफ b की वैल्यूज कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यूज इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 7b इक्वल्स टू 14। 7 को दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई है तो हम उधर ले जाकर डिवाइड कराएंगे, तो हमारे पास आंसर b का आ जाएगा 2। अब ये b का आंसर यूटिलाइज करते हुए हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास a का आंसर आ जाएगा। मैं इक्वेशन ले रही हूँ यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2b माइनस 6, यानी इक्वेशन 1 को ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे a ऑलरेडी सेपरेटेड है। वी विल जस्ट पुट 2 here and we will get the answer of a. So now putting the value of b in equation to find a. Equation मैंने आपको बताया कि मैं ये यूज कर रही हूँ. So 2 into 2 minus 6, 4 minus 6 would be minus 2. So our values of a and b are minus 2 and 2. हमें a और b की वैल्यूज ही फाइंड करने के लिए कहा था, बट इट्स अ लेंथी प्रोसीजर. इसको आप 2-3 दफ़ा खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी.